सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के तौर पे अगर हम जब बात करते हैं हम इक्वालिटी की, समानता की, समाज से ये अपेक्षा की जाती है कि जब पुरुष के साथ भी कुछ हो तो आप उतने ही मजबूती से उनका भी साथ दें। Whenever we deal with such cases, I think it should be dealt on an individual level, right? And I've seen this general tendency of generalizing the thing. So if one such cases happen, people try to alleviate girls or women. Someone who is dying, if he is giving any statement, it is taken as a evidence. It is provable in the court of law. हर व्यक्ति की आर्थिक क्षमता कितनी है, अगर आपकी क्षमता के अनुकूल कोई चीज़ नहीं है, अगर आपकी क्षमता के अनुकूल अगर उससे कहीं हद से ज़्यादा कई गुना अगर आपसे कुछ कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका एक्सटॉर्शन ही है। She cannot be dependent on the man. And also I read that she was working in Accenture and she must be earning good amount of money. So of course she was kind of greedy. अभी जो अतुल सुभाष का डेथ केस हमारे सामने आया, उन्होंने सुसाइड कमिट की है, जहाँ पे उन्होंने 24 पेज का एक नोट छोड़ा है और 81 मिनट्स की एक वीडियो छोड़ी है, जिसमें उन्होंने अपने वाइफ के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, वाइफ और इन लॉज के ऊपर, कि उन्होंने एक्सटॉर्शन मनी, एलिमनी 3 करोड़ की डिमांड की थी, उनके बच्चे से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था, और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। तो इस केस के ऊपर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरे देश ने उसका वीडियो को देखा और जिस तरह से उन्होंने सारा जो सुसाइड नोट वगैरह अपना उतने पेजों का उन्होंने डाला है, कहीं ना कहीं ये चिंतनीय है और विचारणीय है कि कैसे एक उन्होंने सरे से सवाल खड़ा किया है जज के ऊपर कि किस तरह से जज हंस रही थी और बोल रही थी कि ये तो तुम्हारे साथ होना ही था, और इस तरह की चीज़ें जिस तरह से उन्होंने आक्षेप लगाया है। तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के तौर पे अगर हम जब बात करते हैं हम इक्वालिटी की, समानता की, तो अगर महिलाओं के साथ कुछ होता है, जैसे कि बंगाल में देखा हमने या देश में कहीं भी होता है, तो पूरा देश खड़ा हो पाता है कि हाँ इसके साथ गलत हुआ। तो समाज से ये अपेक्षा की जाती है कि जब पुरुष के साथ भी कुछ हो तो आप उतने ही मजबूती से उनका भी साथ दें, अदरवाइज कहीं ना कहीं ये पार्शियलिटी शो करता है। Nowadays, men can suffer, and we need to talk about the individual rights. We don't need to see the things in a herd or yes, there is something wrong throughout in the history. So the men are culprit and women are victims always. We need not to see these things in this way. If someone individual rights has been violated, we have to keep him in the center, and the culprit may be anyone. Just becoming a woman or being a woman doesn't make you pious or doesn't removes all the things from you if you are doing something wrong. So my perspective is simple कि we should see things from case to case basis, and if there is those things which he claimed before committing suicide, these things are real, then they should be punished. They should be punished for their intentions, that what they intentionally have done with this man. Or and one more thing, that our legal system is based on the doctrine that that says that though 100 culprits are gone, but one innocent person should not be convicted or should not be punished. So when we see things in this way, then we really need to be concerned about the situation that came of Atul Subha's suicide case. And one important thing, that in legal system, when we talk about the evidence, someone who is dying, if he is giving any statement, it is taken as a evidence. It is provable in the court of law. So if someone is committing suicide, means is ending his life there, though he has parents alive, he has his children alive, so he would have many dreams about the coming days, about the coming years, that he wanted to do with for his parents or for his children, or maybe someone is friends. So someone is committing suicide means he must have gone through certain mental state which are not suitable for that person, that he is taking this step, this extreme step, I will say. सुसाइड में आप देखते हैं कि जिस तरह की जीवन शैली आज के ज़माने में हम जी रहे हैं, हम रियल वर्ल्ड से अलग एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीते जा रहे हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल हमारे सुविधाओं के लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम भी हुए कि हम एक जो वास्तविक समाज है, रियल वर्ल्ड है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। हमारे पास हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो समस्याएं हैं,
कहने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए हमारे पास कोई नहीं है, हमारे मित्र नहीं हैं। हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारे 1000 फॉलोअर्स हैं, हमारे 1000 फ्रेंड्स हैं, बट रियल वर्ल्ड में हमारे पास कोई ऐसा मित्र नहीं है जिससे हम अपने अंदर की बात साझा कर सकें, हमारे दुख के समय जो हमारे मनोबल को सहारा दे सके, या जिसके साथ हम, तो ये सब कमियां, हम एक ऐसे आइसोलेशन में जीते जा रहे हैं। डिप्रेशन का मूल कारण है, जब हम आइसोलेशन में जीते हैं, हमारे पास कोई नहीं होता है, तब हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो इसमें जो एलिमनी डिमांड की गई थी, 3 करोड़ की एलिमनी डिमांड की गई थी, तो क्या ये एलिमनी है सच में या एक्सटॉर्शन था? अभी देखिए रिसेंटली 2 केसेस हुआ। एक एयरफोर्स में जो एयर हॉस्टेस थी या पायलट थी, बस ऐसे ही कुछ किसी प्रोफेशन में थी, एक फीमेल, तो उसकी भी डेथ हुई। उस केस में क्या हुआ कि विदाउट किसी प्रूफ के उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया, और कोई प्रूफ भी नहीं था वैसा कुछ, बस एक इसके तौर पे कि उसकी डेथ हुई है। और आप सिमिलैरिटी में देखिए इस केस को उठाइए, तो यहाँ पे प्रूफ है, वीडियो है, सारा चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का और जो जुडिशरी सिस्टम है, इसका पार्शियलिटी शो किया जा रहा है कि आज ही उनकी वाइफ और वाइफ की मदर और भाई को आज ही अरेस्ट किया गया गुड़गांव और प्रयागराज से। तो ठीक है, अगर चीज़ें अरेस्ट हुई हैं तो कहीं ना कहीं ये अब जुडिशरी का मैटर है, तो इस पर अब संज्ञान ले जुडिशरी और इस पर चीज़ें हों। लेकिन जहाँ तक आपने एलिमनी की बात की, तो उसके वीडियो और सारी चीज़ों को देख के ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ एक्सटॉर्शन हो रहा था, एक शोषण हो रहा था। और शोषण समाज में सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होता, पुरुषों के साथ भी होता है। बस होता ये है कि महिलाओं के केस में जो भी चीज़ें होती हैं तो सभी तबके के लोग उसके साथ खड़े होते हैं, और पुरुष के साथ जो चीज़ें होती हैं तो ये मान के कि पुरुष समाज है, मजबूती से झेल लेगा, लोग उनके साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। I would like to know your perspective on the thing that the alimony which was demanded, which Atul has claimed that his wife was demanding 3 crores alimony from him, and as well as the judge which was involved into this case, the family judge. Is this a question mark to our judiciary? Is this a stigma to the judicial system? Or the alimony which was demanded, was that an alimony or extortion? लुक द थिंग इज़ कि बहुत सिंपल सी चीज़ें, कि करप्शन ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो भले फ्रंट में कम आती हूँ लेकिन बैक ऑफ द डोर वो चलती रहती हैं, और हर इंस्टीट्यूशन में करप्शन है, और लोग गलत करते हैं, वो गलत तरीके से एक्सटॉर्ट मनी करते हैं। देयर आर सेवरल क्या कहते हैं, जो चीज़ें चल रही होती हैं, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो या फिर अलग अलग तरीके से लोग पैसे ऐंठने के काम करते हैं, वो मतलब पूरे पायस नहीं है लोग। तो अगर ऐसी बैलेंस एक है ना कि लॉ अगर किसी चीज़ को फेवर कर रहा है तो इसका लूपहोल भी होगा, और अगर लूपहोल है तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और उसमें से अगर ये एक ऐसा मामला है तो इट शुड बी सीन दैट पर्सपेक्टिव ना। देयर इज नीड ऑफ, हम टॉक अबाउट CBI एंड miss something happens with women, or no, it's important, I'm not denying that, but if there even in JNU you see ki there is no march and nothing, no discussion is And going if that on would have been happened with a female, we would be talking about the CBI and SIT and this that throughout institution. these JNU students, would they be yes, marching? yes. Would they be having a candle march? Yeah, if it would have happened with women, then there used to be, there should be a candle march, and it was usual ki there would be a candle march or other kind of protest and other things. But if just because he is a male, nothing is going on about his right, no talk, no protest, no march. So why this hypocrisy? The rights are rights, na, individual rights are rights, even the male or female. If someone has been denied, then it should be seen that case. तो इस पर मेंटल हेल्थ कैंपेन्स, जो मेंटल हेल्थ कैंप्स इतने समय से चलाए जा रहे थे, NGOs बनाए जा रहे थे मेंटल हेल्थ को लेके, क्या सुभाष को ऐसा लगा कि उनके पास कोई नहीं है जाने के लिए, उनके माता पिता, उनके दोस्त, या कोई ऐसी बाहर का संगठन मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ जो उनकी मदद कर सके? देखिए, ऐसा केस हम लोग सेम सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी देख चुके थे। वहाँ पे भी एक सोसाइटी, बड़े तबके उठ के आए कि मेंटल हेल्थ, सारी चीज़ें डिबेट चली, इवन पार्लियामेंट में भी बात चली, सब चीज़ें हुआ। लेकिन होता वही है कि जब पुरुष समाज की बात आती है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी थोड़ी मध्यम, मतलब धीमे पड़ जाती है कि नहीं ठीक है, पुरुष समाज है, चीज़ें चलती है। पर कहीं ना कहीं यह विचारणीय हो गया है कि अगर हम सही में, अगर जुडिशरी, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इक्वालिटी की बात करता है, जो कि हम स्कूल से पढ़ते आते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ में हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं,
तो कहीं ना कहीं अगर पुरुष के साथ भी कुछ हो रहा है, जो कि यह केस मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगा, और ये केस आगे के जजमेंट्स और आगे के पुरुष समाज के साथ जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा। और मुझे जुडिशरी से पूरी उम्मीद है कि वो एक निष्पक्ष और वाजिब फैसला सुनाएगी। तो आप अभी ये कह रहे हैं कि पुरुषों के जो अधिकार है महिलाओं की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। मैं तो जिस तरह से महिला आयोग है उसी तरह से आप ही मुझे बताइए, देश में 50 to 60% यूथ्स हैं, ठीक है, जो 18 से 30-28 के एज के हैं। तो जब देश में महिला आयोग हो सकता है, पिछड़ा आयोग हो सकता है, SC/ST आयोग हो सकता है, तो देश में युवा आयोग क्यों नहीं हो सकता? देश में पुरुष आयोग क्यों नहीं हो सकता? एक बड़ा पॉपुलेशन, अगर देश का आप माने 130 करोड़ की आबादी है, तो 60 से 70 करोड़ पुरुष की आबादी है। तो इतने बड़े आयोग, मतलब इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए पुरुष आयोग क्यों ना हो? क्योंकि चीज़ें तो हो रही है, सुशांत सिंह के राजपूत केस में भी हुआ, अभी भी हुआ और आगे भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी एक सोचने का विषय है कि जब आप इस पे भी संज्ञान लें। चलता है। एलिमनी थी या एक्सटॉर्शन था? अगर 3 करोड़ कोई मांग रहा है, अगर हर व्यक्ति की आर्थिक क्षमता कितनी है, अगर आपकी क्षमता के अनुकूल कोई चीज़ नहीं है, अगर आपकी क्षमता के अनुकूल, अगर उससे कहीं हद से ज़्यादा कई गुना अगर आपसे कुछ कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका एक्सटॉर्शन ही है। अगर एलुमनी इस तरह का नहीं हो सकता कि व्यक्ति अपने आप को भी बेच दे तब भी वो 3 करोड़ ना जुटा पाए, तो फिर वो कहाँ से लाएगा? और मैं कहता हूँ एलुमनी की ज़रूरत आपको तब पड़ रही है जब आप डाइवोर्स ले रहे हैं, आप अलग हो रहे हैं। और अलग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं प्रेम, समर्पण, आजकल के समाज में जहाँ हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे फीमेल्स को एलिमनी मांगना और इतने हद तक मांगना, क्या वो जायज़ है? नहीं, मैं वही बार बार कहना चाहूँगा कि हम इनके किसी भी घटना को एक घटना से जोड़कर देखने की बजाय उन सभी घटनाओं के पीछे जाकर उनके मूल कारणों में देखने का प्रयास करेंगे, तभी इन घटनाओं का समाधान कर सकेंगे। So recently, Atul Subhas case is happening. He committed suicide, claiming that, alleging that his wife was harassing her. So what's your opinion on that? So, see, whenever we deal with such cases, I think it should be dealt on an individual level, right? And I've seen this general tendency of generalizing the thing. So, if one such cases happen, people try to alleged girls or women. And although my work is on gender studies broadly, but if I take this case on an individual basis, definitely it was wrong because he has provided all the evidences. I could not read the 40 pages thoroughly, but yes, I glimpsed some of them, and also the videos which are getting circulated on the social media which he made before committing suicide. So definitely on an individual basis it was wrong, because 40,000 I guess was the amount which was decided as an alimony for 3 crore. specifically per month alimony amount for the son was different, Yes, I yes. guess. Yeah. So if we see in general, it's actually quite high. So on an individual basis, definitely it's wrong. But despite all the conversations which I'm hearing from other scholars or the students, what they're trying to do is, from this particular case, they're trying to generalize and coming to a conclusion that all women or all girls are like this. And I'm strictly against such sort of perception or thought process, because we need to deal each and every case on an individual basis and we cannot generalize, right? I feel that it is more of a moral issue. That like person should know कि what they are demanding is right or wrong. और उनके within उनके rights है कि नहीं है. If it is like violation of somebody else's right, जैसे I saw कि अतुल ने claim किया था कि she was literally getting out of me without मतलब with force, and उन्होंने झूठे cases मेरे पे लगा दिए थे. तो I don't know, I feel it was very immoral of her. देखिए, मेरा मानना बहुत तरीके से है कि सुसाइड तो बेचारा किया ही है अतुल, और मानना ये है, देखिए क्या है ना, कि जितना हम अपनी संस्कृतियों से दूर होते जाएंगे, ये पाश्चात्य संस्कृति का देन है कि आज ऐसा कुकृत्य हो रहा है, मतलब ऐसी घटना घट रही है जीवन में। क्यों घट रही है? कि हम अपनी संस्कृतियों को भूल रहे हैं। हमारे यहाँ पति परमेश्वर वाली कॉन्सेप्ट थी, उस चीज़ को हम भूल के अब
ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पितृसत्तात्मक या ऐसा कुछ मेरा टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये तरीका है कि रिलेशनशिप को दोनों लोगों को, विशेष करके पुरुष महिला दोनों को एक साथ मिल के चलना चाहिए, उसमें सबका योगदान, दोनों का योगदान होना चाहिए। अब उसमें समस्या ये है कि एक आदमी आजकल थोड़ा सा झंझट हो रहा है, उसमें सुसाइड कोई कर ले रहा है। ये केवल सुसाइड उसी तक मत आप सीमित रखिए। एक छोटा सा बालक है, उसको किसी परीक्षा में फेल हो जा रहा है तो सुसाइड कर ले रहा है। तो ये जीवन परंपरा जो है हमारी, जो वर्तमान युग की जो जीवन जीने की शैली लोगों की है वो बदल चुकी है। ये कारण है कि ये आजकल सुसाइड का केसेस आप देख रही हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये कारण है, प्राथमिक कारण ये है। तो इसलिए हमको अपनी संस्कृतियों को पढ़ना चाहिए, हमको अपनी संस्कृतियों में ये भी देखना चाहिए कि पॉजिटिविटी हमारी संस्कृति में कैसे मिलती है हमको। हम अपने, आप हमारे पूरे आदर्शों को देख लीजिए, हमारे ग्रंथों को उठाकर देखिए, कहीं आपको सुसाइड शब्द का कोई एक जिक्र किसी कहानी, कथा, उपन्यास कहीं मिलेगा आपको जो भारतीय संस्कृति को अगर आधार मान के लिखी गई हो, ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। So many women and कंगना रनौत also made a controversial remark कि 99% cases में क्या होता है, divorce cases में male are responsible. So what do you think कि ऐसा है कि Again, इनके केस को भी negligible तरीके से डील किया गया, that's why यहाँ तक बात पहुँची? again, I mean, generalizing without any evidence, we keep on generalizing that all women are like this, or all men are like this, or all dowry allegations are fake. But we cannot really do this. Where are the facts and figures? Where are the studies which have been conducting? Just on the basis of my personal experience, or I have seen 2-3 cases like this, and I'm passing sweeping remarks that this is the trend. It's actually not fair. If you are a bit aware about these things, you should definitely look at some facts and figures which are the studies conducted on such issues, right? तो आपके लिए what is the justice in this case कि justice कैसे मिलेगा? Definitely, I mean, the person who has committed suicide cannot come back. But definitely, if we could introduce some modifications in the laws which we are having, if we can make them more flexible, then it could help more such people from becoming victims in future. It can be anyone. I mean, it's not necessarily about male becoming a victim or female becoming a victim. It's about everyone, Injustice with anyone is not correct, right? इंडिया में वो जो तलाक जो बढ़ रहा है उसका रेट, उसका एकमात्र कारण यही है। मैं आपको बार बार क्यों संस्कृति पे ले आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं थी। हमारे यहाँ न सुसाइड की परंपरा है, न डिवोर्स की परंपरा है। लेकिन ये परंपरा कहाँ से आई है? ये पाश्चात्य से परंपरा आई है। और इसको देखिए, आधुनिकीकरण को ग्रहण हम लोग को, हरासमेंट होता है, विमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या उसमें रहना ही है? हरासमेंट अगर हो रहा है तो हरासमेंट ऐसा नहीं है कि वुमन के ही साथ हो रहा है, हरासमेंट मेंस के भी साथ हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि अब जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि बहुत से विश्वविद्यालयों में और बहुत सी रैंकिंग की एक कमेटी बनती है, उसमें गलत तरीके से भी लोग नाम ले लेते हैं। जैसे मतलब आप देखी होंगी कि गलत तरीके से भी नाम प्रपोज कर दिया जाता है और उस लड़के को बिना कुछ किया भी नहीं रहता, उसके बाद भी सजा हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को भी तो भाई उसका दुरुपयोग भी तो हो रहा है। तो हरासमेंट अगर हो रहा है तो उसकी कड़ी से कड़ी मैं निंदा करता हूँ। उसमें भाई जो उसमें फिर डाइवोर्स लेना अगर रिलेशनशिप में है तो डाइवोर्स के अलावा आपको क्या लग रहा है और क्या ऑप्शन है किसी के पास भी, विमेन के पास भी, मेन के पास भी? अगर दोनों में से किसी के पास साथ भी हरासमेंट हो रहा है तो क्या? मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पहली चरण, कई चरण में चीज़ें होती हैं। पहला चरण में आप डिवोर्स नहीं ना ले लेंगे। कोई भी व्यक्ति, अब हर व्यक्ति की गलती जब हो तो उसको माफ़ी का भी हकनामा होता है। मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि इंसान है, इंसान से गलती होती है। तो अगर रिलेशनशिप पति पत्नी हैं तो रिलेशनशिप में अगर हम हैं तो उससे कम से कम हम उसके, देखिए प्रेम जब कब रहेगा, जब हम दूसरे के लिए समर्पित रहेंगे। अब यहाँ क्या है, आजकल इंडिया में सौदा होने लगा है, प्रेम नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट प्रेम का था, हमारे यहाँ सौदा का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन ये जो पाश्चात्यकरण जो हमारे यहाँ हुआ है वो एकदम सौदे का कॉन्सेप्ट हो गया। और सौदे में क्या हो रहा है कि एक छोटी सी लड़ाई हो रही है, उसमें कोई डिवोर्स दे रहा है, कोई मतलब सुसाइड कर ले रहा है। तो ये क्या है? ये आज के मतलब आज हम मान लीजिए हम अपने जीवन में ऐसा कर रहे हैं, तो ये हम इमेजिन करें कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या सीखेगी हमसे। ऑफ कोर्स एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हो सकता है,
अगर वो सही चीज़ों को सही से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, उन्हें नहीं पता वेयर देयर रिलेशनशिप इज़ गोइंग, तो इट कुड बी एन इंडिविजुअल्स फॉल्ट। जब ऐसे डाइवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि डाइवोर्स सही है या आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें भी डाइवोर्स रेट में भी लोग कहते हैं कि क्योंकि आजकल विमेन पढ़ बहुत ज़्यादा रही हैं इसलिए डाइवोर्स रेट ज़्यादा हो रहा है। एनी ओपिनियन ऑन दैट? बिल्कुल भी नहीं यार, अगर किसी को लगता है कि वो दोनों नहीं टिक सकते हैं, उन्हें सेपरेशन चाहिए, तो ऑफकोर्स डाइवोर्स कर लेना चाहिए। और फोर्सफुली रहने से क्या अच्छा है? इससे अच्छा है कि तुम अच्छे से रहो, फ्रीली रहो, अलग अलग रह के रहो। यू कैन बी फ्रेंड्स लेटर, बट फोर्सफुली एक रिलेशनशिप में रहना एंड अ डीप रिलेशनशिप लाइक मैरिज, तो उसमें नहीं टिके रहना चाहिए। फिर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे हमने अतुल के केस में देखा, उनका अंडरस्टैंडिंग इतना ख़त्म हो गया था आपस में कि वो खुद से ही अपनी चीज़ें सॉर्ट नहीं कर सके, और उसकी वाइफ को भी ऐसे मीन्स अडोप्ट करने पड़े, और अतुल भी इतना सप्रेस हुआ। उनके बीच में एक इमोशनल रिलेशनशिप ही नहीं था, एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं था। तो देख लो कि कैसे वो दोनों एक मैरिज में आए, उनके खुद का एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और अभी जो डाइवोर्स केसेस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, सो डू यू थिंक इट इज़ राइट, या आपको लग रहा है कि इससे भी कहीं ना कहीं एक सोसाइटल का मैरिज वाला बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है? My interest area is again family and marriage only, and recently I've got some papers published on this issue. See, it's not about if marriage divorces, divorce cases are increasing, females are responsible for it. I don't think so, because earlier female did not have that agency to speak up. Now if they're coming up and they're denying to stay in a toxic relationship, maybe of a boyfriend or a husband or any other sort of relationship, I don't think breaking from that relationship should be seen as a cause, or women should be treated as a cause for increasing divorce cases. तो अतुल ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वो उनका फैमिली जज था, तो इस वजह से वो एक ना नेग्लिजेंस हो गया, कि क्योंकि सबका एक अजम्पशन होता है कि लड़कियों की गलती है, तो वो एक्सटॉर्शन क्लेम कर रहे हैं कि फैमिली जज था, तो जज ने भी हंस के उसको बोला कि अब तक तो तुमको सुसाइड कर लेना चाहिए था। तो एक उन पे ये भी केस चल रहा है कि उन्होंने फोर्स किया उसको सुसाइड करने के हाँ, लिए। तो जज ने भी अपनी जॉब को रेस्पॉन्सिबली नहीं लिया ना। वर्क इंसान का वर्शिप करना चाहिए। जज को देखो, आई फील दैट इट वाज अ मोरल इशू विमेन के लिए भी, एंड अतुल के लिए भी ये कि उसको भी एग्जामिन करना चाहिए था। एंड द मैन वाज सो लोनली, ही हैड नो फ्रेंड्स, ही हैड नो सच स्पेस कि वेयर ही कुड शेयर हिज व्यूज openly and freely. What was he going through? So it was of course a societal problem, and individuals are at fault here. And yeah, जस्ट लाइक मी टू मूवमेंट, मेन टू मूवमेंट शुरू हुआ है ट्विटर पे, तो आपको लग रहा है कि वी शुड सपोर्ट इट, पीपल शुड सपोर्ट इट? आपको लग रहा है कि बस सोशल मीडिया का हाइप है? ज़रूरी नहीं है हम चीज़ों को बाइनरी में ही देखें, मैन और वीमेन। इट कुड बी एनीबडी, इट कुड बी मैन और इट कुड बी वीमेन। सो ऐसे नहीं है कि मी टू फॉर वीमेन ही होता है, मैन के लिए भी हो सकता है और किसी के लिए भी हो सकता है, फॉर एनी जेंडर और एनीबडी। अतुल ने अपने वीडियो में ये भी बोला कि हमारा जो बेटा है उसकी कस्टडी मेरे फैमिली को मिल जाना चाहिए, मम्मा के पास नहीं रहना चाहिए। तो जब भी ऐसे डाइवोर्स होता है या सुसाइड होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पे देखें तो बच्चे पे होता है। तो इसके बारे में आपको क्या देख कहना है? सकते हैं ना कितना सेल्फिश है यार, मतलब मदर का भी देख सकते हैं और उसके इन लॉज का भी देख सकते हैं कि बच्चे चाइल्ड किस चीज़ को मतलब फेस करेगा। अभी आगे जाके भी वो क्या, ही वुड बी विदाउट अ फादर, और उसके अगर मदर को भी अगर कुछ होता है, इफ़ शी गेट्स इनटू द प्रिजन, आई डोंट नो व्हाट चार्जेस शी वुड फेस, तो इट वुड बी हार्ड फॉर हिम एज वेल। आपको क्या लग रहा है कस्टडी किसके पास जानी चाहिए? I don't know. I also don't know the of her side. We don't know. So we can't really say. तो ये जो 3 करोड़ का एलिमनी था, आपको लग रहा है कि वो जस्टिफिकेबल है, या आपको लग रहा है कि एज अ वुमेन उसको खुद से भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम रखना चाहिए? Of course. She cannot be dependent on the man. And also, I read that she was working in Accenture, and she must be earning good amount of money. So of course she was kind of greedy. And also on the custody question, if mother was greedy and she was selfish as Atul claimed, then the custody should go to Atul's parents. सुभाष ने एक लंबी वीडियो छोड़ी थी
जाने से पहले उसमें उन्होंने बोला था कि उनका जो बेटा है वो उनकी फैमिली को दे दिया जाए। तो डाइवोर्स केसेस में या सुसाइड केसेस में सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो है बच्चे। तो आपको क्या लग रहा है कि उसको मम्मा के पास रहना चाहिए या आपको लग रहा है कि पापा की फैमिली को दे देना चाहिए? नहीं, देखिए सुभाष के इस बात से मैं संबंध नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखिए पति पत्नी का ही अधिकार बच्चे पे होता है। अगर पत्नी अभी जीवित है, पति नहीं है, तो जायज़ सी बात है कि पूरा का पूरा अधिकार उसके माँ के ऊपर है। उस बच्चे का अधिकार, उसकी माँ का अधिकार उस बच्चे के ऊपर पूरा का पूरा है और किसी का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि प्राथमिक हमारा जो स्रोत है, माँ पहली गुरु होती है, तो उसी के ऊपर आधार है। अब लेकिन अब वो कमेंट दिया है तो वो भाई गुस्से में भी तो आदमी वीडियो बनाता है। जब हम मतलब सुसाइड करने जा रहे हैं तो जिसके प्रति हमारी भड़ास रहेगी, गुस्सा रहेगी, तो हम निकालेंगे ही वीडियो में अपने, तो वो निकाला है। लेकिन ये भारतीय जो कल्चर है, भारतीय जो परंपरा है, वो ये कहती है कि उस बच्चे को उसके माँ की ही कस्टडी में रहने देना चाहिए। उससे एटलीस्ट 3 करोड़ लीगल सेटलमेंट के लिए मांगा जाता है। तो जब डाइवोर्स होता है तो कुछ एलिमनी भी दी जाती है कि जो डिपेंडेंट पार्टनर है, जैसे अगर मैं अर्न कर रही हूँ और मेरा हस्बैंड अर्न नहीं कर रहा तो उसको सपोर्ट मिलेगा, या फिर अगर हस्बैंड अर्न करना है और वाइफ अर्न नहीं कर रही है तो उसको सपोर्ट मिलेगा। तो वो सपोर्ट वाली जो मनी है, आपको लग रहा है किस बेसिस पे डिपेंड करना चाहिए? नहीं, देखिए उस जो सुभाष की मनी जो है उसी की आप बात कर रही हैं ना। सुभाष से मनी मांग रही थी वो 3 करोड़। सुभाष से मनी वो ना मांगे। वो भाई अगर वर्तमान युग की महिलाएं स्वयं सक्षम हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो नहीं कमा सकती है, तो वो अपना आजीवन जीविका चला सकती हैं। वो जो अगर सुभाष की जो प्रॉपर्टी है, सुभाष का जो धन है, वो उसके बच्चे को मिलना चाहिए, वो किसी को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, उसके माँ बाप हैं, अगर उनके पास संसाधनों की कमी है तो वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का पैसे का अधिकार माँ बाप पर भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो अधिकार जो है वो उसके बच्चों को, उसके जो बच्चा है उसका छोटा ही होगा, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं, तो उसको ही मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है।